Okay, welcome kids to the second lesson of your SP Joint Stock Company, and today we'll discuss about Joint Stock Company. Joint Stock Company. First, let me explain you the meaning of we can say Joint Stock Company. आज हम लोग Joint Stock Company के बारे में पढ़ते हैं. आइए उसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है. Joint Stock Company is a voluntary association of individuals. Joint Stock Company is a voluntary association of individuals. देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है बच्चों, एक ग्रुप होता है, एक एसोसिएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. उन सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, वी कैन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है ना. एंड देयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू वी कैन से transferable share. So joint stock company is a company where joint stock company is we can say voluntary association of individuals who are coming together with a common objective in their mind to earn maximum amount of profit, and we can say the contributed amount of their capital is been easily or freely transferable into shares. The ownership, which is the condition of membership, and the shares of joint stock company is easily transferable, and those who are shareholders of that company will become owner of that company. Okay, so this is we can say overall, in short, the meaning of your joint stock company. Now guys, let's have a look towards we can say the features of we can say your joint stock company. The first feature is voluntary association. Okay, the first feature of joint stock company is guys, it's a voluntary association of people, and a joint stock company is voluntary association of persons. Membership of the company is open to all. It's a voluntary association of people, persons, and membership is open. And I mean those who want to join joint stock company, they can join. We can say the membership of the company is open to all. A person at his own wish can become or leave. There are no restriction of joining and leaving. There are no restrictions, no such restrictions are there on joining the joint stock company or leaving the joint stock company. And those who want to join it, they can. Those who want to leave, they can. Means there is no, it's an open platform where people are voluntarily come together. And we can say according to, we can say as per their wish, their desire, they are coming together with a common objective in their mind to earn maximum amount of profit. हमारा सबसे पहला फीचर है बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी का. हमारा सबसे पहला फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वॉलंटरी एसोसिएशन. बेटा ओके बच्चों, हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला फीचर जो है कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कि क्या, जहाँ पे लोगों को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, वो खुद आते हैं और वी कैन से कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं. इसे हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं कि वेयर पीपल आर कमिंग एट देयर ओन विश. वो अपनी खुद की मर्जी से आ रहे हैं विद कॉमन ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड. एक कॉमन ऑब्जेक्ट उनके मन में लेके वो लोग खुद आ रहे हैं अपनी मर्जी से, और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं. ओके, so this is your voluntary association. And one more thing, the membership of the company
the membership of the company subject to the provisions of articles of association of the company. All these things are listed, or we can say include in your, we can say, articles of association. Article of association एक एग्रीमेंट जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर इस मेंबर्स के बारे में सारी नॉलेज डेप्थ में लिखी रहेगी. मूव ऑन टू द अनदर फीचर of your joint stock company is, we can say, incorporated association. Incorporated association. आइए देखते हैं कि अब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में क्या है. हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बच्चों, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड की जाती है कंपनीज एक्ट के द्वारा 1956. इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या होता है कि जो भी इस पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर बनेगा, जो भी इस पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर बनेगा, वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाएगा ही करवाएगा. नाउ joint stock, the another feature of joint stock company is incorporated association, means the registration of joint stock company is compulsory. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना बच्चों कंपलसरी होता है, मतलब कि ये करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक, वी कैन से, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन रन कर रहे हो. तो अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज एक्ट 1956, you have to register, compulsorily you have to register the name of your company with the registrar office. रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके आपने आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करना ही करना है. इसे ही हम बोल देंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. आइए अगला फीचर देखते हैं, इसका क्या है. इसका थर्ड फीचर है बच्चों हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. अब आइए, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि क्या, इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. मीन हमारी ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है बच्चों, उसका एक सेपरेट स्टेटस होगा, सेपरेट स्टेटस होगा, एज it is different from its members and directors, as the company is different from its members and directors. हमारी ये जो वी कैन से जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी बच्चों, इसका एक खुद का एक लीगल अस्तित्व होगा, एक खुद का वी कैन से स्टेटस होता है. उसका जो स्टेटस रहेगा वो उसके मेंबर्स और उसके डायरेक्टर से डिफर करेगा. मतलब वो कंपनी मेंबर्स और डायरेक्टर्स की वजह से नहीं जानी जाएगी, वो कंपनी खुद अपने एक लीगल स्टेटस की वजह से वी कैन से पहचानी जाएगी या वी कैन से जानी जाएगी. और द मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और जितने भी इसके मेंबर्स रहेंगे दे आर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी. बट स्टिल एज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक हुए फिर भी कंपनी का एक खुद का लीगल अस्तित्व होगा. आइए देखते हैं हमारा अगला वाला फीचर बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, आर्टिफिशियल पर्सन. नाउ it's a artificial person, yeah, we can say joint stock company is a artificial person which is created by law. As I told you guys that the company is enjoying separate legal status which is different from its members and directors. joint stock company जो कंपनी होती है बच्चों, उसका एक खुद का लीगल वी कैन से स्टेटस होता है जो कि उसके मेंबर्स और डायरेक्टर से डिफर करता है, मतलब अलग होता है. अब जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होती है बच्चों हमारी, वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, मतलब एक अलग सा उसका स्टेटस मेंटेन किया जाता है. उस पर्टिकुलर कंपनी को किसने बनाया है या किसने उसको वी कैन से क्रिएट किया है, तो उसको क्रिएट किया है भाई लॉ ने, उस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट किया है, और इसके लिए हमें बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस करनी पड़ती है. अब हमारी ये जो कंपनी है बच्चों, ये एक वी कैन से, हमारी ये एक जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये एक लॉ के अनुसार काम कर रही होती है. द कंपनी इज बीन क्रिएटेड बाय लॉ एंड ऑल रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स
to be followed by the Companies Act 1956. जो भी हमारा कंपनी का एक्ट होगा बच्चों 1956 का, उस एक्ट के अनुसार हमारी ये जो आर्टिफिशियल कंपनी है, जो एक नकली इंसान है, वो उन लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से वी कैन से एक्ट करेगा. ओके, अब वी कैन से enter into a contract, purchase and sell of assets and properties, appoint a person as employees, but it cannot act on its own like natural person and as it is artificial person. For example, we are purchasing and selling something. We are purchasing and selling something. And for example, our company name is Ambani. So all the purchase material or we can say sell material, वो सारे आ जाएंगे हमारी कंपनी में. किस नाम से परचेज या सेल किए जाएंगे? अंबानी नाम से, या जो भी हमारी कंपनी का नाम रहेगा. इसे ही हम बोल देंगे बच्चों दैट द कंपनी इज एंजॉइंग सेपरेट लीगल स्टेटस. उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या रहेगा बच्चों? एक सेपरेट लीगल स्टेटस मेंटेन होता है. आइए देखते हैं अगला वाला पॉइंट, परपीचुअल सक्सेशन. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इट इज परपीचुअल सक्सेशन. अब हमारी ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है बच्चों, इसका एक परपीचुअल सक्सेशन होता है. मतलब कि वी कैन से परपीचुअल सक्सेशन के अंदर आ जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो ये कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए. इसके अंदर वी कैन से परपीचुअल सक्सेशन मीन्स व्हाट? इट शुड बी इन continuation, means death, retirement, or we can say insolvency will not affect on your firm या will not affect on your company. जैसे कि हमारी ये जो कंपनी है बच्चों, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में होनी चाहिए या कंटिन्यूएशन फॉर्म में होनी चाहिए. इसके ऊपर वी कैन से इसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस होना चाहिए. इसके ऊपर पार्टनर्स की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी या उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये था मेरा परपीचुअल सक्सेशन. आइए इसके अगले वाले फीचर्स और देख लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज गाइस कॉमन सील. ओके, कॉमन सील, इसको इधर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, स्टैम्प, जिसे हम लोग राउंड स्टैम्प बोल सकते हैं. ओके बच्चों, नाउ common seal, as I told you that joint stock company is enjoying separate legal status which is totally different from its members and directors. हमारी जो joint stock company होती है बच्चों, वो उसके मेंबर से पूरी तरह से डिफर करती है या हटके होती है, और उसके अंदर काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं, they are working under a common seal. They are working under a common seal means वी कैन से अकाउंटेंट भी एक स्टैंप मारेगा, डायरेक्टर भी कोई पर्टिकुलर चीज के लिए वही स्टैंप मारेगा, चपरासी भी, एक जो प्यून रहेगा बच्चों, वो भी उसी स्टैंप को मारेगा. मीन्स व्हाट? फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल या फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, सारे लोग एक पर्टिकुलर स्टैंप के अंदर या एक कॉमन सील के अंदर काम कर रहे होते हैं. उस पर्टिकुलर कंपनी का एक स्टैंप होगा बच्चों. कंपनी से आउट होने वाला हर एक पेपर, उसके ऊपर वो स्टैंप लगना ही लगना है. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एंजॉइंग सेपरेट लीगल स्टेटस. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल स्टेटस मेंटेन करती है या एंजॉय करती है. एंड द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी विल वर्क या दे आर वर्किंग अंडर अ कॉमन सील. एक कॉमन सील, एक कॉमन स्टैंप होता है बच्चों, और इसी पर्टिकुलर स्टैंप के नीचे दे हैव टू डू देयर सिग्नेचर्स. इसी कॉमन सील के अंदर में उन्हें अपनी वी कैन से सिग्नेचर्स करनी पड़ती है. आइए देखते हैं अगला वाला फीचर इसका. ओके, द नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी. The next feature is limited liability. The liability of shareholders we can say shareholders of joint stock companies, they are enjoying we can say limited liability. As I told you that shareholders are owner of the company.
जॉइंट स्टॉक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे बच्चों, उनकी लाइबिलिटीज हो जाती है लिमिटेड। और शेयर होल्डर्स को मैंने इससे पहले भी बताया है कि उन्हें हम लोग ओनर बोल सकते हैं कंपनी के, या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो वी कैन से शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं हमारी फर्म के, उनको जितने भी राइट्स दिए जाते हैं, नॉर्म्स दिए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इसीलिए इन पर्टिकुलर लोगों की लाइबिलिटीज भी बहुत लिमिटेड होती है। आइए देखते हैं इसी का अगला वाला पॉइंट, जो कि है मेरा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ownership and management. Now guys, let's have a look toward, we can say, the another feature of it, separation of ownership and management. अब इसका separation ownership और management से differ कैसे करता है, आइए देखते हैं। In a company, ownership is separated from management. Shareholders are real owners of the company. However, they are unable to manage day-to-day affairs of the company. Okay, separation of ownership and management. Now as I told you, the owners of, we can say, joint stock company are shareholders. Okay, shareholders are usually the owners of that particular joint stock company, and those who are managing the daily affairs of the firm, of the company, they are different, they are not owners. हमारी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है बच्चों, उसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ही हम लोग ओनर बोल सकते हैं कंपनी का, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर अपॉइंटिंग मैनेजमेंट टू हैंडल देयर डेली अफेयर्स, या वी कैन से टू हैंडल डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ देयर बिजनेस। फिर भी ये शेयर होल्डर मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं उनके डेली ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, या उनके डेली अफेयर्स को वी कैन से मेंटेन करने के लिए। इसीलिए separation of ownership and management. The ownership is different part and management is different part. Ownership means those who are holding shares of that company, and management means who are handling, those who are handling, we can say, day to day affairs. Affairs मतलब वो वाले affairs नहीं, okay? Day to day affairs means transactions of your business. Okay, तो ये था मेरा अगला फीचर। आइए देखते हैं वी कैन से और कुछ फीचर्स बचे हुए हैं इसके। अगला है मेरा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओके। अब इसके जो वी कैन से शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक कंपनी के और एक होते हैं प्राइवेट कंपनी के। तो द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज freely transferable from one person to another. पब्लिक कंपनी की जो शेयर होते हैं बच्चों, वो फ्रीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बट द शेयर्स ऑफ वी कैन से प्राइवेट कंपनीज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, and are not freely transferable from one person to another. Move on to the next feature of it guys, which is number of members. Number of members. Now let's have a look guys, see how much members are required to form public company and how much to form private company. अगला हमारा पॉइंट है बच्चों नंबर ऑफ मेंबर्स, कि पब्लिक फॉर्म करने के लिए, पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए और प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए। सो इन अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 members, in a private company we required minimum 2 and maximum 200 members. In a private company we required minimum 2 and maximum 200, and in public company minimum 7 and maximum no limit of members. तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट, unlimited person can join a joint stock company in case of public company, and in private companies minimum 2 and maximum 200 members are, we can say, entertained at a time. Move on to the another feature of it is guys, which is your capital. आइए आप कैपिटल देखते हैं, हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल क्या होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल क्या होता है बच्चों, ह्यूज होता है। जैसे अभी हमने देखा
कि पर्सन जो है, मेंबर्स जो है, मिनिमम 2 और 200 चाहिए प्राइवेट के लिए और मिनिमम 7 और अनलिमिटेड चाहिए वी कैन से पब्लिक कंपनी के लिए. सो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी वी कैन से ह्यूज कैपिटल ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बिन इन्वेस्टेड. हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस को लार्ज स्केल वाला बिजनेस भी बोलते हैं, है ना. इफ अ कंपनी इज रनिंग ऑन ह्यूज कैपिटल या लार्ज कैपिटल, so but of course the business is on large scale. And last point of the session is government control. ओके अगला मेरा लास्ट पॉइंट है बच्चों, गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या आ जाता है कि जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है. एज आई टोल्ड यू दैट इट हैज लीगल स्टेटस. कंपनी इज हैविंग लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस. सो कंपनी जो भी है बच्चों हमारी, इसको हमारे कंपल्सरीली इसको हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर या गवर्नमेंट के अंडर में काम करना होगा. ठीक है, तो ये सारे थे मेरे फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के. थैंक यू.